Good morning, students. We learned the chapter 11 years Jannam Tasya Marnam, and you know all the story, whole story you know. With two neighbors story this was and वो जो उनका उसको मजा चखाना चाहते हैं अपने नेबर को. He should the one neighbor, named Vittadasha, merchant. He was a rich merchant, and he was very greedy. And his neighbor, who is also merchant, named Putnath, but he seen वो देखते हैं कि my neighbor the Vittadas is so rich, but why he is so greedy? So he decided to deceive him. So he decided to deceive him, and he think a plan. And he goes to his house and for bringing some utensil. And he tell the Vittadas that some guests come in my house. So for him making the food, I need some utensil. So give please your utensil. And when I after using them, I return you day after tomorrow. So by the duty of neighbor, by the duty of neighbor, तो पड़ोसी का तो धर्म होता है ना हेल्प करना, तो उस ड्यूटी को वो मानते हुए वित्तदास जो है gave his utensil to Putnath, and after using the utensil, Putnath returned him that utensil with some another small and new utensil also. So seeing that, Vittadas said that this utensil are not mine, but the Putnath replied that your utensil gave birth in my house. So this is the young one of your utensils. This is the baby of your utensils. Then Putnath, after Putnath seeing the वो utensil को baby के रूप में पाकर वो became very happy, and he after some times the Putnath once again goes to the Vittadas's house to bring some utensil again. Then by thinking that by greedy nature the Vittadasha gave him his all utensil because he think that he will return me the some another utensils with my utensils. But this time the Putnath not return his utensil, and that after 1 month, it happened 1 month and not returned the Putnath with Das's utensil. Then Vittadas goes to the Putnath's house to bring his own utensil. And when he asked for his own utensil, the Putnath said that your utensil died. This time he said that your utensil died. तो वो Vittadas surprise हो गया, वो became surprised and said with anger that how it will happen, ये कैसा, ये how it can be happen, ये कैसे हो सकता है, ये जो utensil है निर्जीव पदार्थ, ये कैसे मर सकते हैं. Then Putnath replied with politely that if the utensils gave birth, if the utensils can give birth another utensils small and new, then why it should not die? Why it cannot die? मर क्यों नहीं सकता है?
तो पुटनाथ को इस तरह से उसने डिसीव किया कि हु इज born in this world, so we all should have died one day. हाँ, तो इस तरह की कहानी थी इसमें। इस तरह से उसका जो है लोग जो है चकनाचूर हुआ। कहने का मतलब वो जब दूसरे अन्य वो जो बर्तन पाए तो वो बहुत खुश हो गया, और दूसरी बार उसने जितने इष्ट अच्छे अच्छे बर्तन थे सारे दे दिए कि सबके छोटे छोटे रूप, सबके न्यू न्यू बर्तन वो पुटनाथ मुझे रिटर्न करेगा। पर इस टाइम पुटनाथ रिटर्न ही नहीं किया, उन्हें खुद आना पड़ा मांगने के लिए। और तब वो बोला कि वो तो सारे मर गए। तो वो बोला कि अरे ये तो जब जन्म दे सकता है तो मर क्यों नहीं सकता है। वो गुस्सा आ गया कि मेरा बर्तन तो दे नहीं रहा, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो पुटनाथ बोला कि जब वो जन्म दे सकता है निर्जीव पदार्थ तो मर भी सकता है। सो ही डिवाइस हिम, एंड द मोरल इज दिस story that who came in this world, whose birth, who all creatures we get born in this world, all should all die surely. मरना निश्चित है उसका एक दिन। ये संसार का नियम है, ये वर्ल्ड का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। The title is the same, यस्य जननम तस्य मरणम। तो जिसका जन्म हुआ है वो उसका मरना निश्चित है, वो मरते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। स्टोरी तो सारी समझ में आ गई, सारा मैंने पढ़ा दिया, मीनिंग लाइन बाय लाइन। जहाँ आप लोग को दिक्कत होगी फिर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। और टुडे वी टेक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो सी इन योर बुक द पेज नंबर 51, एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। वित्तदासः धनिको अपि कीदृशः आसीत्। तो वित्तदासः धनिको अपि लुब्धः आसीत्। थर्ड वन, लुब्धा में टिक लगाओ। पूटनाथस्य गृहे के आतिथ्यः भविष्यन्ति। पूटनाथस्य गृहे कुटुम्बीजनाः आतिथ्यः भविष्यन्ति। जो गेस्ट हैं वो होंगे, भविष्यन्ति मतलब वो अतिथि बनेंगे। वित्तदासः पूटनाथाय केन भावेन पात्राणि प्रायच्छत्। वित्तदास जो है पुटनाथ को किस भाव से अपने बर्तन दिए। वो प्रातिवेशिक धर्म भावे, वो अपने पड़ोसी होने के नाते प्रातिवेशिक धर्म भावे उनको उन्होंने बर्तन दिया। तो घ में टिक लगाओ। पूटनाथ कदा पात्राणि प्रत्यर्पयितुं वित्तदासस्य गृहम् अगच्छत्। तो पात्रोपयोगावसाने, पात्र के उपयोग के अवसान में मतलब अंत में, जब पात्र का उस यूटेंसिल का बर्तन का काम खत्म हो गया तब वो उसको लौटाने गए। तो ख में टिक लगाओ। पात्रोपयोगावसाने किम संप्राप्य वित्तदासः विस्मितः अभवत्। नूतनानि पात्राणि, नूतनानि जो नए नए बर्तन पाकर वो आश्चर्य हो गए कि ये तो मेरे बर्तन है ही नहीं। भवतः सर्वाणि पात्राणि मृतानि एतत् वाक्यं कः वदति। पूटनाथ ने बोला कि आपके सारे बर्तन मर गए। अधोलिखितानि, सेकेंड वन, अधोलिखितानां प्रश्नानां प्रकोष्ठगत शब्दस्य योग्य रूपेण उत्तरं लिखतः। अस्ति वित्तदासो नाम प्रभुत लोभः। और ये ब्रैकेट में दिया है जो वर्ड, उसको इसमें बैठवाना है उसका क्रिया लगा करके कि कौन प्रथमा विभक्ति आएगा, द्वितीय आएगा, तृतीय आएगा, कौन सा रूप आएगा, उस रूप को इसमें ज्वाइन करना है। तो अस्ति वित्तदासो नाम प्रभुत लोभः, वाणिज्य जनः है यहाँ पे वर्ड आगे, और इधर समृद्ध, तो समृद्ध वाणिज्य जनः। ये वाणिज्य जन का विशेषण है। वाणिज्य कैसे है, समृद्ध है, तो जिस रूप में वाणिज्य जन है उसी रूप में उनका विशेषण आएगा समृद्ध। नॉट हियर यू रीड समृद्ध से समृद्धेन समृद्धाय। हाँ, तो वाणिज्य कैसे है, तो वाणिज्य जन है तो समृद्ध। अंडरस्टूड, यू राइट हियर समृद्ध। सेकेंड वन, कानिचित् लघूनि डैश पात्राण्यपि तत्र स्थापितानि। तो नूतन है, तो यहाँ पे है पात्राण्यपि स्थापितानि, तो नूतनानि, यहाँ पे नूतनानि, लघूनि नूतनानि पात्राण्यपि तत्र स्थापितवानि। क्या स्थापितवानि, तो नूतनानि पात्राण्यपि, पात्राणि जोड़ अपि, तो पात्राण्यपि
तत्र स्थापितवानि। तो यहाँ पे लिखो नूतनानि। थर्ड वन, डैश कतिपयेषु दिवसेषु कूटनाथः पुनरपि वित्तदासं पात्रेभ्यः प्रार्थयते। व्यतीत शब्द दिया है और इधर है कतिपयेषु दिवसेषु, तो आपको लिखना है व्यतीतेषु। व्यतीतेषु कतिपयेषु दिवसेषु कूटनाथः पुनरपि वित्तदासं पात्रेभ्यः प्रार्थयते। कुछ दिन बीत जाने के बाद वो फिर से प्राप्त करने गए, तो क्या लिखेंगे? व्यतीतेषु, ये मूर्धन्य श वाला स और वो ह्रस्व का, जैसे कतिपयेषु और दिवसेषु में। व्यतीतेषु, व्यतीत वर्ड है उसमें एकले दो और वही मूर्धन्य स ह्रस्वकार दो। तस्मै डैश पात्राणि दत्तवान, सर्व है अविष्ट है, तो तस्मै पात्राणि है इधर, तो सर्वाणि इष्टानि पात्राणि। सर्वाणि इष्टानि पात्राणि, सर्वाणि में अण होगा और इष्टानि में न होगा। तथा दादा न वाला इष्टानि में होगा और सर्वाणि में अण वर्ड आता है, अण अक्षर आता है। तो सर्वाणि इष्टानि पात्राणि दत्तवान। कूटनाथः सशोकम अकथयत, शोक के साथ बोले। कूटनाथः सशोकम अकथयत, सशोकम। थर्ड वन, एक वाक्य संस्कृत भाषा उत्तरतः कूटनाथः किमर्थं पात्राणि अयाचत। ये मैं बताती हूँ, लिख दो। कूटनाथः किमर्थं पात्राणि अयाचत, तो कूटनाथः अतिथि जनानां कृते भोजन निर्माणार्थं पात्राणि अयाचत। कूटनाथः मैं लिख देती हूँ, आप लोग कॉपी करो। स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं लिखना चाहती हूँ। कूटनाथः बिना लिखे अगर सही से लिख लोगे तो लिखने की जरूरत। कूटनाथः किमर्थं पात्राणि, कूटनाथं अतिथि जनानां कृते, अतिथि जनानां कृते भोजन निर्माणार्थं, भोजन निर्माणार्थं, निर्माणार्थं इसमें बिंदु, भोजन निर्माणार्थं पात्राणि अयाचत। अयाचत उसमें है, अयाचत मतलब मांगा। सेकेंड वन, सेकेंड क्वेश्चन इज किम संप्राप्य वित्तदासः प्रसन्ना जातः। किम संप्राप्य, क्या पाकर वित्तदास प्रसन्न हुए, तो आपको देना है अपत्य रूपेण। अपत्य मतलब बच्चा, बेटा। अपत्य रूपेण नूतनानि पात्राणि, नूतनानि पात्राणि संप्राप्य वित्तदासः प्रसन्नः जातः। हाँ, थर्ड वन, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन, कूटनाथ गृहं गत्वा वित्तदासः किम अयाचत। कूटनाथ के घर जाकर वित्तदास ने क्या मांगा, तो स्वपात्राणि। ये अगर एक वाक्य में है, एक वाक्य है तो पूरा लिखना होगा। कूटनाथ गृहं गत्वा, पूरे सेंटेंस में आपको लिखना होगा ये। कूटनाथस्य गृहं गत्वा वित्तदासः
स्वपात्राणि अयाचत। ये वर्ड जो है स्वपात्राणि, ये छोटा और सिंपल आप लोगों को याद रहेगा, नहीं तो इसकी जगह पर फिर स्वकीयानि, स्वकीयानि पात्राणि, इतना बड़ा याद रखना होगा। स्वकीयानि पात्राणि, ये वर्ड आप दे सकते हो। फिर फोर्थ में क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, निर्जीवानां पात्राणां किं न संभवति। निर्जीवानां पात्राणां मैं लिख रही हूँ क्योंकि इन सेंटेंस है, तो सेंटेंस में आपको ऐसे लिखना है, निर्जीवानां, और स्पेलिंग गलती नहीं होनी चाहिए। निर्जीवानां पात्राणां किं न संभवति, तो आपको किं के जगह पे मरणम लिख देना है। मरणम न संभवति, संभवति, जो भी है ये ऐसे ही रह जाते हैं। पांचवा, किं सर्वथा नश्यति। यस्य जन्मं भवति तत् सर्वं नश्यति। यस्य जननं भवति, यस्य जननं भवति या यः समुत्पन्नं भवति, जन्मं भवति या समुत्पन्नं, दोनों लिख सकते हो। समुत्पन्नं भवति तस्य मरणं, क्वेश्चन में जो है वही सर्वथा, तस्य मरणं ऐसे भी लिख सकते हैं, तस्य मरणं सर्वथा निश्चितम्, उनका मरना निश्चित है। अंडरस्टूड? चौथा का अधोलिखितानां पदानां कृदंत प्रकार लिखता है। कृदंत में क्या है? वही जो मैंने बोला कि आपको लट लकार, लोट लकार और ये सब जो है लकार, 5 लकार होते हैं, वो याद करना होगा। और प्रत्यय, जो कृदंत प्रत्यय वगैरह, वो उसके बारे में जानेंगे, तब ये क्वेश्चन का आंसर आप सही से और जल्दी से लिख सकते हो। तो लुब्धा है, लुभ धातु, इसमें कौन से धातु हैं, कौन सा वो ये है प्रत्यय है, और कौन सा वचन है, और कौन सा पुरुष है, ये चारों लिखना होता है। तो यू रिटन दिस क्वेश्चन आंसर, देन आई फॉलो द फोर्थ वन। रब करो। आई होप यू ऑल रिटन दिस। I hope all you are written this, and not it is very difficult. So now you are in class 10, so write not slowly. तो इसमें है कि कृदंत प्रकरण में आपको धातु और प्रत्यय और वचन और पुरुष लिखना होता है। तो चौथा का पहला लुब्धा दिया है। लुब्धा वर्ड दिया है, तो आपको यहाँ लिखना है, इसमें ऐसे करके कि लुब्ध धातु, अक्त प्रत्यय और लुब्ध धातु अक्त प्रत्यय प्रथम पुरुष
प्रथम पुरुष को पूरा नहीं लिखे, प्र सुनना और पु सुनना ऐसे लिख सकते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन, एक वचन, इसका आंसर हो गया लुब्धा का। सेकेंड वन में है प्रत्यर्पयितुम, प्रत्यर्पयितुम, इसमें आ गया, इसमें केवल आपको देना है प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण वर्ड आ गया, प्रत्यर्पण धातु आ गया और सुमुन प्रत्यय, सुमुन प्रत्यय, बस दिस इज राइट, इतना ही लिखना है, सुमुन प्रत्यय, दिस इज द राइट। एंड थर्ड वन में क्या है, दत्तानी, इसमें है दा धातु, दा धातु, कृत प्रत्यय, द्वितीया, द्वितीया और बहुवचन, और बहुवचन। फोर्थ वन वंचनीय, वंचनीय, वंच धातु, वंच धातु, कृत प्रत्यय, वंचनीय हमें कृत प्रत्यय, प्रथमा, प्रथमा एक वचन, एक वचन। पांचवा है संप्राप्य, संप्राप्य, इसमें आ जाएगा सम प्लस प्र उपसर्ग प्लस आप, इतना लिखना होगा इसमें, और कृत ल्यप प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय। फिर सिक्स्थ वन में क्या है, आपन्ना, आपन्ना, अक्त प्रत्यय, अक्त प्रत्यय, प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन। ये चौथा का ऐसे लिखना है इस तरह से। फिर पांचवा में क्या है, संधि प्रयोजयत, संधि प्रयोजयत, वित्तदाशः नाम, वित्तदाशः नाम, written now I am writing this, आधा हाफ ही रब करती हूँ। और इसमें क्या है, संधि प्रयोजयत, संधि को जोड़ना है, संधि बनाना है, तो वित्तदाशः नाम, मैं ये नहीं लिखती हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा। पहला का वित्तदाशः नाम है तो क्या होगा, वो लिखती हूँ, दाशो नाम, वित्तदाशो नाम पहला का। दूसरा ये पांचवा का पहला, दूसरा में कहा जोरचित, तो ऐसे कश्चित, कश्चित। फिर तीसरा में है धनिका अपि, धनिका अपि, धनिको अपि, ऐसे। अब अग्र इसमें
अतिथयः। तो सो अतिथयः, सो अतिथयः, सो अतिथयः। फिर पांचवा में है इसका पांचवा वित्त दास तस्मै। तो वित्त दासस् तस्मै, वित्त दासस् तस्मै, ये संधि हो गया, संधि इसमें बन गया। राइट फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ में है रेखांकित बनाना स्थाने प्रकोष्ठात् उचितं पद चित्वा प्रश्न वाक्या रचयत। पात्रैः सह अन्यानि पात्राणि स्थापितानि। तो पात्र के साथ अन्य पात्र को भी दे दिया। तो कई पात्र ही है ना, ये जैसे पात्र वर्ड है यहाँ पे और ये अंडरलाइन है, तो यहाँ पे इसके जैसा जो है कई और ये देखो इसमें भी विसर्ग आ गया और इसमें भी ये दोनों आ गए कई। तो बस यही लिख देना है देख करके, जैसे पात्र ही अंडरलाइन है तो कई सह अन्यानि पात्राणि स्थापितानि। पात्राणि रात्रौ प्रसूतानि, दूसरा वर्ड है रात्रौ, यहाँ पे कई दे देना है। दूसरा वर्ड है रात्रौ, तो पात्राणि रात्रौ प्रसूतानि, रात में पात्रों ने जन्म दिया। तो कदा, यहाँ पे रात्रि में, तो यहाँ पे है कि कदा, कब दिया जन्म। तीसरा में कूटनाथः पात्रेभ्यः प्रार्थयतः। कूटनाथ अपने कूटनाथ में अंडरलाइन है, कूटनाथ में अंडरलाइन है, तो यहाँ पे दे देना है कह पात्रेभ्यः प्रार्थयतः। पात्राणि भवतः गृहे विलसन्ति, आपके घर में। पात्राणि केषां गृहे, भवतः गृहे, आपके घर में, तो केषां गृहे, भवतः षष्ठी का रूप है, आपके घर में, ये अंडरलाइन है। तो आपको यहाँ पे केषां लिखना है कि जिनके घर में वो विलसित, वो प्रसन्न हो रहे हैं। पात्राणां जन्म भवति, पात्रों के जन्म होते हैं। तो पूछना है कि किसके जन्म होते हैं। कस्य जन्म भवति, पात्राणां जन्म भवति, तो कस्य जन्म भवति, यहाँ पे है पात्राणां, पात्रों के जन्म होते हैं। तो यहाँ पे आपको देना है कि कस्य, किसके जन्म होते हैं, ऐसे। और वो क्वेश्चन में से देख के पूरे लिख देना है। फिर है कि सूचनानुसारम शब्द रूपम लिखत, जैसे पात्राणाम ऊपर दिया है नूतनानी में नूतन शब्द नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीय बहुवचन, वैसे ही पात्रा नाम में पात्र शब्द है और नपुंसकलिंग है पात्रानी और षष्ठी बहुवचन पात्रा नाम, रामा नाम। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा शब्द रूप तो ये हो गया षष्ठी का बहुवचन। उपाय शब्द है, पुल्लिंग है और तृतीया का एक वचन है उपायन, रामेन की तरह। रात्रो, रात्रि शब्द है, स्त्रीलिंग है और सप्तमी का एक वचन है। दिवसेषु, दिवस शब्द है, पुल्लिंग है, सप्तमी का बहुवचन है। मया, अस्मत् शब्द है, ये सभी लिंगों में समान रूप में चलता है। तो सर्वलिंगेषु समानार्थम, सर्वलिंगेषु समानम लिख दो यहाँ पे लिंग में, एंड ओनली सबलिंगेषु लिख दो तो भी चलेगा। तृतीया एक वचन। मैं अंडरस्टूड इस चर्चा का आठवां क्रियापद वर्तमान काले परिवर्त्य वाक्यम पुनः लिखत। कूटनाथ वित्तदासम अकथयत, ये पास्ट टेंस में है कि कूटनाथ ने वित्तदास से कहा, कूटनाथ वित्तदासेन अकथयत। तो इसको बोल रहा है वर्तमान काल में बनाने के लिए। पहला कूटनाथ वित्तदासम अकथयत, कूटनाथ वित्तदास को कहा, और अभी लिखना है कि उसको वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में करना है कि कूटनाथ वित्तदास से कहता है। तो इसको क्या लिखेंगे, कूटनाथ वित्तदासम कथयति,
कथयति, कथयति। अंडरस्टूड? ये प्रेजेंट टेंस में बनाना है। कुटुंबीजनाः अतिथयः भविष्यन्ति। अब कुटुंबीजन जो है वो गेस्ट होंगे, मतलब भविष्य काल की बात हो रही है, इसको वर्तमान काल में वर्क करना है। तो कुटुंबीजनाः अतिथयः, कुटुंबीजनाः अतिथयः भवन्ति, भवन्ति दिया क्योंकि कुटुंबीजना बहुवचन है, तो इसीलिए भवन्ति होते हैं। कुटुंबीजना हो, उसमें था होंगे, भविष्यन्ति, यहाँ पे भवन्ति। वित्तदास कूटनाथाय पात्राणि प्रायच्छत्। वित्तदास कूटनाथ को जो है यूटेंसिल दे दिया। अभी बनाना है वर्तमान में कि कूटनाथ, वित्तदास कूटनाथ को बर्तन देता है। तो वित्तदासः कूटनाथाय पात्राणि प्रयच्छति, मतलब देता है। वर्तमान काल की बात हो गई। अब है 9वां आंग्ल भाषायां उत्तरता, मतलब इंग्लिश में उत्तर दे। 2 क्वेश्चन है। व्हाट वाज द प्लानिंग ऑफ कूटनाथ ऑफ डिवाइस वित्तदास। तो कूटनाथ जो है क्या प्लानिंग किया वित्तदास से डिवाइस का। तो कूटनाथ बोरोड द यूटेंसिल फ्रॉम वित्तदास's हाउस एंड व्हेन ही रिटर्न he added some another small and new utensil also. Then by getting the new ones and said that your utensil gave birth at my house. So seeing the new utensil with his utensil by the मतलब उसके young one, by the seeing of young one of his utensil formed Vittdas became very happy, and he next time he also gave him his all utensil to him by his greedy nature कि ये फिर से मुझे लौटाएगा तो मुझे बहुत सारे बर्तन हो जाएंगे। बट this time the Koontnath not returned his utensil, and so many times after so many times the Vittdas goes to the Koontnath's house to bring his utensil. He said that your utensil died. So Vittdas became angry and asked how it could be happen, ये ऐसा कैसे हो सकता है। Then Koontnath said that if utensil can give birth, then they can die surely. If they can give birth, then it can die surely. Thus Koontnath deceives his neighbor Vittdas who was very greedy. इतना आप लोगों को लिखना है। लिख लोगे या मैं लिखवाऊं? Second one is why did Vittdas give Koontnath utensil second time? By the greedy nature. First time he get some another utensil with his utensil, some new and small. So this time by his greedy nature he gave the utensil to Koontnath. He thinks that this time also Koontnath return his utensil with another some new and small utensil. So by the greedy nature he gave the second time his utensil to Koontnath. इतना आप लोग लिख लोगे और नहीं अगर तो मैं लिखवाऊं। Not hard if you understood all the story, then it is not hard for
for you. 9 का पहला what was planning of Putnath to devise with Dasa. Putnath borrowed Putnath Putnath borrowed utensils from with Dasa and after using he returned him their all utensils with some another new utensils. Next time he again borrowed utensils but not returned. But not return them, इसी में जोड़ दो them to saying that your all utensils died. Your all utensils which you given me died. When Vityadas ऑब्जेक्शन करना कि कैसे ऐसा हो गया, हाउ इट विल हैपन, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, इट कुड बी हैपन, ऐसा कैसे हो सकता है. व्हेन Vityadas objected, Putnath says that Putnath says politely that if utensil can give birth, then surely it can die. So thus Putnath beside his neighbor, thus बाद में ये लिख देने का कि thus Putnath I
greedy neighbor, Neivhour, greedy neighbor, इस तरह से उसका बदला ले लिया। सेकेंड वन, व्हाई डिड मित्रदास गिव कूटनाथ यूटेंसिल सेकेंड टाइम। अब इसका भी आंसर ऐसे ही है कि कूटनाथ जब फर्स्ट टाइम वो दिया तो वो सोचता कि उसको दूसरे मिल गए। जब फर्स्ट टाइम वो फर्स्ट टाइम फाइंड नामा का दूसरा, फर्स्ट टाइम when Kutnath returned with Das's utensil, he gave him some another new utensils also. So next time by greedy nature of Mithridates, he gave him all utensils because he think that Kutnath will return him his utensils with so many new one। वो सोचा कि मुझे नए बर्तन के साथ ये मुझे लौटाएगा, तो उसको मन में लोभ आ गया कि अरे उस बार ये बोला कि ये तो जन्म ले लिया था, इसको सारे बर्तन दे दो, अच्छे बर्तन दे दी, किसके भी वो बच्चे बना करके बच्चे पैदा करके मुझे दे जाएगा। बट वो ऐसा हुआ नहीं। वो इस बार उसने चालाकी मार दी और उसने बोल दिया कि आपके तो सारे यूटेंसिल मर गए। तो और फिर बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो बोला इस संसार में जिसका जन्म होता है उसका मरना निश्चित है। सो इफ द यूटेंसिल कैन गिव बर्थ तो ही कैन डाई ऑल्सो एंड श्योरली डाई। बट निर्जीव पदार्थ नहीं मरते हैं, है ना। तो ये उसको लोभ नहीं करना चाहिए था, उसको वापस कर देना चाहिए। सो now today we completed the exercise also. This chapter is completed. Next day we take next chapter. So तब तक के लिए stay home, stay safe.